Hello and welcome back, dear students. Welcome to this new video. This video is the paper discussion of specially physics. Today was the NEET 2026, and as I can see, many students have been contacting with us that Alhamdulillah their paper went very good. As expected, last year the paper was too difficult, too lengthy, subjected to many calculations. The students stuck in, because of which they lagged in chemistry, they lagged in biology as well. But today the paper was moderate. Small things were taken into account, like the unit conversion and all that. So in this short video we are going to discuss about the physics paper of NEET 2026. I have received these questions and I don't exactly remember from which series these questions are. So now let's start with the very first question that we have over here. So we do have the very first question that it's from the magnetism. The question is, a 100-ton closely wound circular coil of radius 5 centimeter has magnetic field given over here. ये given है हमारे पास. The current flowing through the coil and the magnitude of magnetic moment. So we are supposed to calculate two things over here. That is the current as well as the magnitude, or magnetic moment. So directly formula based question है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप जानते हैं magnetic moment होता है number of turns multiplied by current multiplied it by area. So you have been asked both the things. मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछा गया है और हमारे से करंट भी पूछा है. तो मैग्नेटिक मोमेंट होने के लिए आपके पास आई भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए और एन तो है आपके पास, लेकिन करंट हमारे पास नहीं है. लेकिन हम जानते हैं ये फॉर्मूला, वी डू हैव मैग्नेटिक मोमेंट बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2r, राइट. सो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लेके वी कैन इजीली कैलकुलेट करंट एज 2br divided by mu naught. Everything is given over here. We have been provided magnetic field is given over here, ये given है magnetic field, और moreover 3.14 given है, right, times 10 to the power. That means ये pi के साथ cancel out हो जाएगा, तो हमारी calculation easy हो जाएंगे. That was not too lengthy, so we will put the value of that is 3.14 times 10 to the power minus 3 Tesla multiplied it by r is given to us 5 centimeters, so we will convert that into the meter, so we are going to get the answer. So यहाँ से ये करंट की वैल्यू आ जाएगी, यही करंट इस मैग्नेटिक मोमेंट में लाइक पुट करेंगे. और एरिया कैसे निकालेंगे, वी नो दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो आई कैन से पाई इंटू आर स्क्वायर इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट. सो इसमें पुट करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा. Then we'll move to the next question. The next question is very simple. Like whenever we start the dual nature of optics, हम हमेशा ये क्लास में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर्स का जो सीक्वेंस है कैसे चलता है. तो वी नो दिस E is equal to h nu. What is this? This is the energy of photon. So that means this is going to be matched with this. Diffraction and interference, they are the properties of what we call as the wave. पार्टिकल का भी डिफ्रैक्शन, पार्टिकल का भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाता है, तो ये वेव नेचर को डिपिक्ट करता है, राइट दिस. सो दैट स्टैंड्स A4 B3, और तो यहाँ पे भी है. फिर हमें चेक करना पड़ेगा, लैम्डा इज h/p, लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट इज C2 C1. ये वाला हमारे पास ऑप्शन सही बैठेगा. कॉम्पटन इफेक्ट हमें पता है, ये पार्टिकल नेचर को दिखाता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तो हम हर क्लास में डिस्कस करते हैं. सो D2. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Now moving to this next question. The next question, as expected, if you remember when I made this video that must do 20 topics from the physics, उसमें मैंने बोला था रेक्टिफिकेशन तो ज़रूर पढ़ के जाना. रेक्टिफिकेशन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने बताया था जब भी हमें रेक्टिफिकेशन में करंट निकालना हो, लाइक वी आर सपोज फर्स्ट, सारे डायोड्स हम आइडियली मानते हैं, नॉन आइडियल हमारे पास आते नहीं है. अगर ये वाला डायोड पहले चेक करें तो ये डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस, तो रिप्लेस इट बाय प्लेन वायर. और जो दूसरा डायोड है ये हमारा रिवर्स बायस है, मेक इट एज ओपन सर्किट, इसमें से कोई करंट पास होगा नहीं. थर्ड डायोड इज this diode is again forward bias, so replace it by plain wire. Fourth diode is again reverse bias, replace it by open circuit. तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास 4 ओम है, ये हमारे पास 3 ओम, इसमें से तो कोई करंट जाएगा नहीं, सो इट्स बेटर टू नॉट ड्रॉ इट और यू कैन कैंसल इट आउट. तो ये हमारे पास 2 ओम है, ये हमारे पास यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, दैट इज 10 वोल्ट. तो अगर मुझसे करंट पूछा जाना है तो करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R. I इज इक्वल टू V कितना है मेरे पास, दैट इज 10, और R कितना गिवन है
2 or 4, they are connected in parallel, so we know it product divided by sum 4 plus 2, that is 8 divided by 6. So ये 6 ऊपर जाएगा, 8 नीचे रहेगा. So 2 4s are 2 5s are, that is I will 6 5s are 30 divided by 2, 30 divided by 4, sorry हमारा ऑप्शन होगा 30 डिवाइड, अच्छा यहाँ पे 15 by 2 है, so we can write it as 15 divided by 2 as well. So 15 divided by 2 will be its correct answer. राइट, ये हमारा 15 डिवाइडेड बाई, बहुत सिंपल सवाल था. ऑलरेडी क्वेश्चंस ऐसे लेवल के क्लास में डिस्कस हो चुके हैं. ओवरऑल अगर हम देखेंगे नीट 2026 का जो पेपर था, फिजिक्स की बात करेंगे, आई एम एक्सपर्ट ऑफ माय सब्जेक्ट ओनली, कि ओवरऑल इट वाज वेरी सिंपल, लाइक इट वाज नॉट दैट मच लेंदी कि हमारा 1 घंटे में सॉल्व ना हो पाता. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रो, ये सॉरी काइनेमैटिक्स का सवाल ले सकते हैं हम इसको. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी. लेट्स से वैक्यूम वाली सी को जो इन्होंने ना 1 माना है, लेट्स से. अब ये बोल रहा है कि और ये कितना होता है, सी 3 into 10 is per 8 meter per second. These are the questions wherein you are supposed to take care of units. So 3 into 10 is per, if the light takes 6 minutes 8 seconds to reach the earth from the sun, so 6 minute 40 seconds. So all this needs to be converted into seconds, so that comes up to be 6 6 36, that's 360 plus 40, that comes up to be 400 seconds. So अगर मुझे distance निकालना हो, distance will be equal to speed into time. Speed को unity माना है 1, time कितना है मेरे पास 400 seconds, so answer comes up to be 400, right? So the distance होगा हमारे पास 400, new unit में 400 आ जाएगा. Now we do have very first next question, the very question from the kinematics. अगर आप लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब मैंने ग्राफ्स पे वीडियो अपलोड करी थी, ग्राफ्स विच वेर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द काइनेमैटिक्स, ग्राफ्स की बात करें तो ग्राफ्स पे बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने, एक्यूट ऑब्ट्यूस वाला सिंपल. यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंकेंगे, लेट्स से जब आप नीचे से ऊपर फेंक देते हो, ठीक, इसको मैं पॉजिटिव मान ले लेता हूँ वेलोसिटी, और जैसे इन्होंने माना है पॉजिटिव, ऊपर जाते हुए इसकी वेलोसिटी घटेगी बिकॉज इट्स मोशन अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी नीचे हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम करेगा इसकी वेलोसिटी, तो ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन है पॉजिटिव, कम होती जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0. फिर जब नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी विल बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे जो हमारा ये जो ऑलरेडी टेक्ड है, ये वाला ग्राफ हमारा करेक्ट होगा, यहाँ पे 0 होगी और यहाँ के बाद नीचे गिरेगा. ये कौन सा पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, राइट? हमने ऑलरेडी इसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोल रहा है कि पहले वेलोसिटी मैक्सिमम घट रही है 0, ठीक है 0, उसके बाद ये दोबारा क्या कर रहा है, वेलोसिटी को बढ़ा रहा है. फाइन, सो वी कैन इजीली टेक दिस एज द केस ओवर हियर, right? So we will go with the C only, है ना? Fine. Now this is again the question from LSD, जिसमें हम MSD, mean scale division और वर्नियर स्केल डिवीजन में हमें लीस्ट काउंट हम जानते हैं, that is mean scale division minus vernier scale division. Let's take the mean scale division as 1, and that comes up to be each division of length 1 mm given, that comes up to be 60 divided by 20, और accordingly ये mm में given है और यहाँ से हमसे सेंटीमीटर में पूछा गया है, we will divide it by what we call as a 10 and we are going to get this answer. Simple. देखिए यहाँ से आपको मिलेगा directly 60 है ना, 16, so that comes up to be 4 divided by 5, so 5 minus 4 divided by 5, that comes up to be 1 divided by 5. 1 divided by 5 को जब आप, so that comes up to be 0.5 something, sorry 0.2, और हम इसको क्या 10 raised power minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, we are going to get 0.02. fine. Now we do have another question is from AC में से भी एक दो questions आए हुए हैं. We do have the question, an AC circuit contains a resistance 1 kilo ohm, capacitors 0 point inductor. तो ये हमारा LCR सर्किट है, तो LCR सर्किट में ये सारे कनेक्टेड है सीरीज. अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछिए. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यू कैन डायरेक्टली राइट 1 divided by 2 pi अंडर रूट LC. सो आप जानते हैं दिस इज द F रेजो. अगर आप क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 1 divided by 2 pi अंडर रूट LC. तो सब कुछ गिवन है, यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. जस्ट टू मेक द वीडियो शॉर्ट, आपको एक हिंट सा मिलेगा हाउ वी वर सपोज्ड टू डू दिस. अभी अच्छा, ये क्वेश्चन भी ग्राफ के बेसिस पे है, थोड़ा सा इस
इस 1 और 3 में देयर कैन बी लाइक प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि द फिगर शोन बिलो शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर, वी डू हैव द सॉलिड वायर ओवर हियर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए दिया है, कैरिंग स्टेडी करंट आई, इसमें स्टेडी करंट आई जा रहा है, करंट इज कांस्टेंट। द प्लॉट विच correctly represents the variation of magnetic field with the distance from the axis of the conductor। देखिए, जब आप बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड में इनसाइड अगर आप बात करें, इनसाइड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। और अगर आप आउटसाइड की बात करें, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जब आप इनसाइड से आउटसाइड जा रहे हो तो इनसाइड तो पहले बढ़ेगा, सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन शोन इंक्रीजिंग, फिर ये घटेगा, राइट। सिंपल, हम सॉरी आर, तो वी नो दिस, सो द करेक्ट, ये ग्राफ तब होता जब इट वुड हैव बीन इंक्रीजिंग पैराबोलिकली, राइट। Now, oh, sorry, there's no question over here. Now moving to the next question. The next question is from nuclear physics. Nuclear physics के भी दो questions हमें देखने को मिले। तो nuclear physics में हम अगर देखें, modern physics में अच्छा खासा weightage आता है। We do have an unknown nucleus has nuclear density of this 2.29 into 10 to the power 17 kg and mass is given this kg. Everything is given in units, so we are not supposed to convert. There's no need of conversion over here. अच्छा, मास नंबर दिया गया है। देखिए, आप जानते हैं R equals to R naught A to the power 1/3, right? And volume is directly proportional to R cube, 4/3 pi R cube, right? तो मैं ये कह सकता हूँ डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमसे क्या पूछा है? मास नंबर A। अच्छा, मास नंबर पूछा गया है, A पूछा गया है, फाइन। सो वी कैन से यहाँ पे no nucleus or nuclear density is being given to us, that is 2.29 times 10 to the power 17. Mass is also being given to us, that is 19.926 times 10 to the power minus 27, divided by volume is 4 divided by 3 pi r cube. Now this r cube, in place of this r cube I will place this value, so that will be equal to, चलो फिलहाल इसको डेंसिटी लिख देते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू 19.92, we were supposed to write this as mass as well, divided by 4 divided by 3 pi r क्यूब के बदले r नॉट 1 a रेज पर 1/3, तो a ही बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा r क्यूब। 4 पाई इन्होंने लिखा है 12.56 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ से हम r क्यूब इंटू a, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटेबल था, 19.92 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाय 4 पाई, जो गिवन है मेरे पास 12 पॉइंट समथिंग 12.56 टाइम्स आर क्यूब भी गिवन होता है, मल्टीप्लाइडेड बाय, अब ये डेंसिटी डिवाइड हो जाएगी 2.29 टाइम्स 10 टू द पावर 17। आप जानते हैं ऊपर जाएगा 10 is power 3, r cube की वैल्यू गिवन है, पुट द वैल्यू, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर कम्स अप टू बी आफ्टर सॉल्विंग 12। okay, let's check, we have the question, let's check the sequence of this question. Question 10, okay, question 11 is missing, I'll get it checked. A galvanometer of resistance, this is given, gives full scale deflection for the current 1 milliampere, right? We have been given the galvanometer current, right? So it is converted into ammeter of the range 0.0 to 10 ampere, sorry, वो मिली एम्पियर में given है। शंट, अच्छा शंट, हम जानते हैं शंट जो होता है that is galvanometric resistance divided by n-1, या आप x-1 भी लिख सकते हैं, and now that what is x, that is equal to I divided by ig, I डिवाइडेड बाई आई जी। आई कितना गिवन है मेरे पास, करंट की रेंज कितनी गिवन है, एम मीटर की 10, आई जी कितना गिवन है, गैल्वेनोमेट्रिक करंट 10 रेज पावर -3, क्योंकि वो मिली एम्पियर है ना, यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिट्स भी एम्पियर में ही दिए, सो दैट इज गोइंग टू बी 10 रेज पावर 4, ठीक है। इस n की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, सो यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड शंट you are going to get galvanometric resistance given है मेरे पास 100 divided by 10 raised power 4 minus 1, 1 से solid 0.01 ohm resistance हमारा आंसर आ जाएगा।
Now moving to the next question. The question is from YDSC. अच्छा, what is important in the dear students कि दिस ईयर YDSC में से क्वेश्चंस पूछे गए, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न में से क्वेश्चंस पूछे गए, 2 क्वेश्चंस ऑप्टिक्स में से अच्छा खासा वेटेज आया हुआ है. 4 क्वेश्चंस मींस अ लॉट. इट मींस अ लॉट रियली. It means more than 16 like 16 marks, right? So we do have this question. Now let's try to solve this question. Question is, in Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity at a point on the screen where the part difference is lambda is k units. Okay, part difference अगर मेरे पास lambda given है तो इसका मतलब quite obviously वहाँ पे constructive interference, we know n lambda पे constructive interference होता है, और वहाँ पे इंटेंसिटी इज के यूनिट्स. तो अगर हम अब हम जानते हैं जब पावर डिफरेंस लैम्डा होगा तो जो इंटेंसिटी होती है वो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, दैट इज 4 आई नॉट. लेट्स से दैट इज कॉल्ड एज के. हम जानते हैं जब आई इज इक्वल आई नॉट, सॉरी आई वन इज इक्वल आई टू, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो पॉसिबल मेरे पास आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 4 आई नॉट. उसको मैंने के यूनिट्स लिख दिया. अब ये कह रहा है कि जब मैंने, ये कब था, जब पावर डिफरेंस कितना था, लैम्डा. जब मैंने पावर डिफरेंस को लैम्डा बाई 3 कर दिया, अब मुझे नई इंटेंसिटी पूछा है, तो लैम्डा बाई 3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई बाई 3 और आई में से 120. एंड आई नो एवरी स्टूडेंट नोज दिस, डेल्टा फाई इज इक्वल 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू पावर डिफरेंस. देखो ये कैसे, ये तो हम क्लास में पढ़ते भी है. डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू पावर डिफरेंस. अब पावर डिफरेंस को मैंने जो है लैम्डा बाई 3 कर दिया, राइट. सो दैट कम्स अप टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, दैट कम्स अप टू बी 120 डिग्री. और cos 120 कितना होता है, -1/2. अब मेरे से न्यू इंटेंसिटी पूछी है, लेट्स टेक दैट एट आई डैश. तो I1 प्लस I1 तो वो कितना निकलेगा, 2I0, यानी I0 मान लो 1 प्लस कॉस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं हम. सो आप या तो वही फॉर्मूला जानते हो, आई नेट इज इक्वल आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव. वहीं से ये आंसर आ चुका है क्योंकि वी द स्लिट विड्थ हैज नॉट बीन चेंज्ड. So intensity is supposed to remain same and it is going to change as per this corresponding value, that is 2 I naught into 1 minus 1 by 2, right? So that comes up to be 2 I naught minus 1 by 2, right? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर दो, तो ये कितना है, आई इज इक्वल टू आई नॉट, राइट. आई इज इक्वल टू आई नॉट आया, तो वो कितना आएगा, के बाई 4. पहले के था, फिर कितना हो गया, के बाई 4. अच्छा, वी डू हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर. इस क्वेश्चन को देखते हैं. अच्छा, एक ही स्लाइड पे आए दोनों क्वेश्चंस. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. द क्वेश्चन इज सेइंग the magnitude and direction of the acceleration produced by on the body of mass when two mutually perpendicular force, let's say this is 8 and this is 6, ठीक है. एक्ट ऑन इट आर, देखिए हमसे क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछा गया है. आप जानते हो रिजल्टेंट फोर्स, इधर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, हम क्लास में डिस्कस करते हैं 6 8 10 12 5 13 3 4 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. तो रिजल्टेंट तो क्वाइट ऑब्वियसली 10 ही आएगा. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ना वो एफ नेट प्रोड्यूस करेगा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ नेट डिवाइडेड बाय मास. एफ नेट कितना है 10, मास कितना है 5, so that comes out to be 2 meter per second square. और let's take this angle as alpha, यही पूछा है. और हम जानते हैं जिसके साथ एंगल पूछा है उसको नीचे लिख दो, 8 प्लस ऊपर कितना आएगा 6 साइन 90. वाई 90, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाई 6 cos 90. ये तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 8, तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4. तो अल्फा आया tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 4. लेकिन ये किसके साथ बनाया है, 8 के साथ, 8 के साथ आएगा tan इनवर्स 3 बाई 4. खत्म, से सिंपल सवाल. यहाँ पे बच्चे ने पता नहीं क्या किया है. ओके, वी डू हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द कैपेसिटर्स, दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 C2 C3 C4 10 माइक्रोफैराड एंड C5 इज 2.5 और कनेक्टेड इन अ सीरीज. अच्छा, बैटरी. अब हमसे क्या पूछे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर. देखिए ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज. सो अब ये कितना आएगा, 10 10 10 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारा आ जाएगा 2.5. अब ये तो हम जानते हैं, लाइक बीइंग द नीट स्टूडेंट्स और द जेई स्टूडेंट्स, वी नो हाउ टू सॉल्व दिस सर्किट. हमारे पास इन चारों का जो नेट आ जाएगा वो 2.5 आ जाएगा. और ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला भी है, ये कितना है 2.5.
दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल दीज, और यहाँ पे मेरे पास बैटरी कनेक्टेड है 50 वोल्ट, दैट इज 2.5। अच्छा, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए? पैरेलल। और पैरेलल में अगर हम जानते हैं कि हमें चार्ज निकालना है, चार्ज कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, दैट इज जो इनमें सेम ही रहेगा। ये कितना आएगा? 50। Q इज इक्वल टू सी वी लगा लीजिए। Q इज इक्वल टू C कितना आएगा? 5 इंटू 50, सो दैट कम्स अप टू बी राउंड ऑफ 250 माइक्रो कूलम, 250 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई जस्ट एक सेकेंड, हमारे पास इतना कैपेसिटेंस आ जाएगा, सॉरी इतना कैपेसिटेंस आ जाएगा, एंड वी हैव बीन गिवन 4 125। ओके, हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी? 2.5 प्लस 2.5, वो तो हो गया 5। तो इन दोनों में से ये दोनों तो डिस्कार्ड हो गए पहले ही। अब हमें चेक करना है कि अब यहाँ से 250 और ये 250 इक्वली बढ़ जाएगा, इसमें कितना जाएगा? 125, और इन पूरे में कितना जाएगा? लेट्स से ये यहाँ पे 2.5 2.5 2.5 सीरीज में थे, सब में कितना जाएगा? 125 माइक्रोफैरड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Now we do have one more question. The question is from the experiment। अच्छा, मीटर ब्रिज पे पूछा गया। देखिए, मीटर ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि हमसे क्या पूछा गया है कि पोटेंशियोमीटर इज डिलीटेड। हमसे पूछा गया है कि इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द पोजीशंस ऑफ द सेल, हमसे यहाँ पे सेल बनाया गया है, गैल्वेनोमीटर G गिवन है, यहाँ पे G गिवन है, आर इंटरचेंज। अच्छा, अगर हमने इंटरचेंज किया, G यहाँ पे पहले E था, ये G यहाँ पे था, हमने इनको इंटरचेंज किया, तो ये ऑलरेडी बैलेंस था। इफ इट इज बैलेंस, तो बैलेंस जब ये था, अगर आप इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? वी शैल ऑब्जर्व दैट ओनली द राइट साइड डिफ्लेक्शन, ये तो ऑलरेडी सेंटर पे था, जीरो पे था गैल्वेनोमीटर पे, ओनली द लेफ्ट साइड नो। अगर ये राइट तो इसका मतलब ये अनबैलेंस हो गया, लेफ्ट साइड हो गया तो अनबैलेंस हो गया, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द। अब ये बैलेंस पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट है, बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शंस एट बैलेंस पॉइंट, जितना राइट साइड उतना लेफ्ट साइड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द बैलेंस पॉइंट। ये राइट में जाएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, एंड इट विल बी एट द बैलेंस कंडीशन। सो आई थिंक दिस इज द फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई सॉल्वेबल नहीं था, इसलिए दोनों पेजेस, दोनों क्वेश्चंस को एक ही साथ ले आए। दी पावर ऑफ द क्रेन विच लिफ्ट्स द मास, अगर मुझसे पावर पूछा गया है, दैट इज mgh डिवाइडेड बाई t। मास गिवन है 1000 kg, g गिवन है 9.8, स्ट्रिक्टली बोला गया ये लेना है, 20 डिवाइडेड बाई 10, खत्म। सो दैट कम्स अप टू बी 19.6 into 1000, right? So 19.6 into 1000। अच्छा, everything is given in units, right? So ये तो watt में ही आएगा, इधर दिया हुआ है even the kilowatts, क्योंकि everything is given in the unit, so that will be 19.6 multiplied by 1000, so that comes up to be the answer। Now moving to the next question। The next question is, हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, पॉइजन्स रेशियो आप जानते हो, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सो दिस मैचेस दिस। यंग्स मॉडुलस इज, आप जानते हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन या वाई टाइम्स डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो वहाँ से यंग्स मॉडुलस कितना आ जाएगा? एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल, ठीक है ना? सो दिस मैचेस दिस। तो अगर हम देखेंगे D1 A2 D1 A2, तो यही आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने का कोई मकसद बैठता नहीं। We do have in a concave lens दिया हुआ है हमारे पास, ऐसा दिया है। अब ये बोला है array of light emanating from an object parallel to the principal axis। Let's say we know this is diverging lens, normal conditions में लेंगे। emerges parallel to the principal axis, नहीं, ये तो diverge हो रहा है। appears to diverge from the first principal focus। first principal focus आप जानते हो, यहाँ से तो diverging नहीं लग रहा है। passes through the 2f which is radius of the curvature। देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं ये होगा हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या होती है? ये वो फोकस होता है जहां से लाइट अगर जाए वो पैरेलल जाए। लाइक अगर यहाँ से लाइट जाएगी, अगर यहाँ से लाइट जाएगी वो पैरेलल जाएगी, राइट? जो फिर पैरेलल जाएगी इससे। तो अगर मैं इनको बैक रे एक्सटेंड करूं, अगर ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना,
ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द एक्सिस, ये हमें लगेगा ये जाएंगे ऐसे, but they will seem as if they are coming from this point, right? They will seem, यही ये कह रहा है, passes through the second principal form. They will seem, right, after refraction, जैसे वो यहाँ से virtual image वाला concept. Next question is from the rotation that a thin wire of length and linear mass density m is bent in a circular ring in xy plane. अच्छा, पहले लेंथ था और इसको बेंड किया हमने विद सेंटर ऑफ मास विद सेंटर सी एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड mr square, right? So that comes up to be 1/3 m कितना निकलेगा, वो निकलेगा मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड विद लेंथ. ठीक है ना, टोटल मास इज गिवन. नाउ आर इज गिवन आज, हम जानते हैं जब मैंने बेंड किया तो सरकमफ्रेंस लेंथ के बराबर होगी, तो आर कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा एल डिवाइडेड, अच्छा स्मॉल एल ले लेते हैं, एल डिवाइडेड नहीं, इन्होंने कैपिटल एल लिया है, एल डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो वी विल पुट इट ओवर हियर, सो वी आर गोइंग टू गेट एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, बट हियर इन वी हैव स्क्वायर, so that comes up to be 2 divided by 3 ml cube divided by 4 pi square. ओ सॉरी 1/3 होता है, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, नहीं हमसे क्या पूछा गया है, थिन वायर का 3/2, स्लाइट मिस्टेक, थिन वायर का होता है 3/2, 3 divided by 2, right? So we are going to get 3 divided by 8 pi square ml cube. So this comes up to be moment of inertia. So ये है हमारा 8 pi square. हाँ, मास पर यूनिट लेंथ, ये है हमारा इसका आंसर. ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है कि ईच साइड ऑफ मेटालिक क्यूब of mass is measured to be 9 centimeter, keeping the significant figures in view the density of the material. देखिए बड़ा सिंपल है, density is equal to mass per unit volume. Mass is given as 5.580 divided by volume कितना given है, each side that is 9 into 10 raised power minus 3 का whole cube. आप इसको solve करेंगे क्योंकि हमें significant figures को ध्यान में रखना है, ये सेंटीमीटर में given है and we will get this answer. बहुत सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेटेबल था, just to make the video short. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है. क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2.0 cos, ये वाला इंपॉर्टेंट, इसमें 2 पाई बाहर है, 10t माइनस 0.0080 x प्लस 0.35, राइट? तो हमसे क्या पूछा गया है कि x एंड y आर इन सेंटीमीटर, t इज इन सेकेंड, फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 0.25. अच्छा, अभी हमने देखा जो फेज डिफरेंस होता है ना डेल्टा फाई, वो होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाइडेड बाय पाथ डिफरेंस. आप यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. अब पाथ का डिफरेंस जितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ पाथ डिफरेंस. तो 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा को हम k बोलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस कितना है 0.5, लेकिन ये सेंटीमीटर में गिवन है तो मैं इसको 50 भी लिख सकता हूँ. अब वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज k इन इट. अब हम जानते हैं कोई भी चीज जो x के साथ होती है या y के साथ होती है, दैट्स व्हाट इज प्रोपगेशन कांस्टेंट. तो ये 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा बन जाएगा मेरा k. तो k कितना हो जाएगा, दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाइडेड बाय 0.008 x इज इन सेंटीमीटर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 into 10 raised power minus 3 times 50. तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. ये नोटेबल पॉइंट है, के किसके बराबर है, आगे ये किस में है सेंटीमीटर में, मैंने इसको डायरेक्टली किस में मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आगे पाई रेडियन में आंसर है मेरा. सो आगे तो सॉल्व करना ही हमें. 50 ये तो 100 हो जाएगा, 10 रेज़ पावर माइनस 3 टू ये 8 पाई, तो ये आ जाएगा मेरा 0.8 पाई रेडियन के आसपास आंसर, राइट? सो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ये हमारे व्हाट वी कॉल एज द मोनोक्रोमैटिक लाइट प्रिज्म पे सवाल है. प्रिज्म पे सवाल मेरे पास ऐसा है कि वी आर गेटिंग दिस प्रिज्म, और इस प्रिज्म में यहाँ से वी नो दिस इज नॉर्मल एंड दिस. अच्छा, अगर हमसे ये सवाल में बोला इक्विलेटरल प्रिज्म, तो दैट मींस एवरी एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री.
or moreover we are being given that it is bending towards the base, that means the case of the minimum deviation case. We know I plus E minus A, or we can say I and E will be equal, so we will write 2I minus A, right? Minimum deviation 2 I kitna है, angle of incidence must be given, that is 50 minus A kitna given है, angle of prism, that is 60 degree, so that comes up to be 40 degree. So 40 degree will be the correct answer. Now moving to the next question. The next question is again from the semiconductor. Semiconductors में हमारे पास input voltage दिया हुआ है. Notable point ये है कि हम हमेशा output लोड रेजिस्टेंस पे लेते हैं, बट हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि बताओ डायोड पे कितना ऑब्टेन हो चुका है, राइट? अब हम जानते हैं वही वाला केस, पहले इसको पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, लेकिन यहाँ पे डायोड पे पूछा है, यहाँ पे नेगेटिव कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव, उल्टा कर दो. रिवर्स हाफ साइकिल में तो कैरी करेगा नहीं, तो पहले में इसने कैरी करा, जितना इनपुट आया उतना आउटपुट मिला, उसके बाद इट इज नॉट गोइंग टू कैरी, सो ये तो करेक्ट होगा नहीं, ये तो हाँ फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, ये भी फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही है, ये तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, इसका मतलब यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस या डायोड है ही नहीं, तब होता भाई, मैं तो एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ. Now we do have this question. The question is that for the simple pendulum having time period, the variation of the kinetic energy with the time is represented as. Kinetic energy यहाँ पे नेगेटिव, दोबारा टाइम के साथ घट रही है, दिस विल नॉट बी, सो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होगी. एट टी बाई टू 0, फिर बढ़ेगी घटेगी, लेकिन नेगेटिव तो हो नहीं सकती, कांस्टेंट तो रह नहीं सकती, राइट? So we do have this question. A resistor is connected to a battery, 12 volt EMF and internal resistance. Terminal potential difference हमसे पूछा गया. We know that is E minus IR. E कितना given है 12. I कितना given है current, that is 0.6, और internal resistance ये है, that is 2. So once you will solve it, so you are going to get 0.10.8, क्योंकि ये हमारे पास 1.2 आ जाएगा. तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं. Now we do have the second 27th question. The 27th question is saying the amount of work done to raise a mass m. तो वर्क डन को हम जानते हैं, that is mgh divided by आप इधर लिख दो n+1, ये तो हम जानते हैं, राइट? n इज कितने टाइम्स आप ऊपर ले गए, सो 1 टाइम्स ऑफ r ले गए ना, इक्वल टू द रेडियस ऑफ, अगर 2 टाइम्स होता n इक्वल 2r होता, तो किस हाइट तक ले गए हम? The amount of work done to raise a body equal to the height equal to the radius. mg height r है, कितने गुना r प्लस 1 टाइम्स n की वैल्यू कितनी है 1 plus 1, so that is equal directly mgr divided by 2. ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व. Now we do have this question. The question is the electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. If the system performs work done of this, the internal energy. देखिए आप जानते हैं Q is equal to U plus W. So this is the energy supplied. We are supposed to calculate internal energy. Internal energy will be equal to Q minus W. So Q is given as 100 माइनस, क्योंकि रेट पर सेकंड है तो ये एनर्जी ही है, ठीक है ना, ये नहीं समझना ये वॉट है पावर, इट्स पावर पर यूनिट टाइम, so that is 75, so that comes up to be 25 watt answer. उसके बाद a room heater is rated this much if the supply voltage drops to what will be the new power. पहले तो इस पे पावर निकाल दो, फिर वोल्टेज ड्रॉप हुआ, फिर इस पे पावर निकालो. चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई सॉल्व इट. पावर होता है हमारे पास v² डिवाइडेड बाय r, तो r निकालो, दैट इज v² डिवाइडेड बाय p, क्योंकि पावर गिवन है मेरे पास. रेटेड वो कितना है, पहले 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर इज 400. नाउ लेट्स से न्यू p डैश विल बी इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय r. r तो चेंज नहीं होगा, 1 डिवाइडेड बाय r लिख दो. नया v² कितना है हमारे पास 200, राइट? सो दैट कम्स अप टू 1 बाय r के बदले में लिख सकता हूँ 400, ये r है ना, ये इस r को उल्टा कर दो, डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर, 0 से 0 गया, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 11, 10 डिवाइडेड बाय 11, दैट्स 400 into 100 divided by 121, so that comes up to be 1000 divided by, तो रफली जो है 331 के आसपास हमारा आंसर. क्योंकि अगर ये ऐसा होता 400 into
100 और कुछ नहीं होता तो हमारा आंसर इसके पास आ जाता। ऑप्शंस आर दूर दूर है हमारे ऑप्शंस, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे टैकल कर सकते हैं। नाउ वी डू हैव द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्संस कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम्स। देखिए बड़ा सिंपल है, अगर आप स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट याद करें, स्टॉपिंग डिस्टेंस एसएसडी आप जानते हो दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस वी टी, जिसको हम लैग डिस्टेंस बोलते हैं। और लेट्स से दिस इज कॉमन, क्योंकि फ्री ड्रॉप किया गया या फॉल हुआ तो यू सबका सेम, एक्सेलरेशन सबका सेम, बट वी टी जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन टाइम, जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा वो ज्यादा देर तक उसको डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम किसका है? सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम हमारा बी का है। चेंज कलर, बी का सबसे ज्यादा रिएक्शन टाइम, पहले इसका नंबर आएगा, फिर ई का दूसरा, फिर इसका, फिर 4 5, तो आंसर आएगा बी, सॉरी हाँ बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी, ये देखो आंसर है। उसके बाद है हमारे पास कंसीडर टू अनचार्ज कैपेसिटर्स, पहले कैपेसिटर्स अनचार्ज थे ऑफ इक्वल कैपेसिटी, अच्छा दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल गिवन है हमारे पास। उसके बाद लिखा है वन ऑफ देम इज चार्ज बाय 100 एंड डिस्कनेक्टेड, नाउ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द अनचार्ज कैपेसिटर। लॉस, देखो लॉस वाला तो आप जानते हो 1/2 वो होता है C1 C2 डिवाइडेड बाय सम इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, राइट। सो आ जाएगा 1/2 C स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है, वो आ जाएगा 2C, दोनों के बराबर है ना। तो V1 फाइनली तो डिस्चार्ज कर दिया गया, इनिशियली कितना था 100 का स्क्वायर, माइनस जीरो कर दो एंड यू आर गोइंग टू गेट आंसर। उसके बाद कंसीडर टू अनचार्ज कंसीडर, अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट। C1 दिया हुआ है यहाँ पे, वही वाला फॉर्मूला लगना है। उसके बाद वी हैव सविता क्लास 11 स्टूडेंट while conducting an experiment notes down a data of time taken to complete 30 oscillations as 30 seconds। तो इसका मतलब टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है, सॉरी लेंथ पूछा गया है, तो टाइम पीरियड निकालिए। टाइम पीरियड आ जाता है कितना, कितना टाइम लगेगा इसको, completes 30 oscillations, 30 oscillations कंप्लीट हुआ 60 सेकेंड्स में, तो इसका मतलब टाइम कितना लगा होगा 60 डिवाइडेड बाई 30, तो पर ऑसिलेशन कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। तो अगर मेरे से लेंथ पूछा है दैट इज t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी, स्क्वायर कीजिए दोनों साइड, जी हमसे 9.8 बोला गया है और पाई स्क्वायर भी बोला ही गया। देखिए ये हिंट स्क्वायरिंग का मुझे यहाँ से मिलता है, तो दैट इज 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो निकलेगा 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई जी, 2 स्क्वायर कैंसल, पाई स्क्वायर तो 9.8 ही बोला इन्होंने, जी भी 9.8 या 9.8 कैंसल, एल की वैल्यू 1, वहाँ 1 आया, खत्म। उसके बाद we have one more question, the peak value of the alternating current is 5 ampere and frequency, how long will the current starting from the zero take to reach the peak value। अच्छा हम करंट को जानते हैं साइनोसाइडल होता है, I is equal I नॉट साइन ओमेगा टी, आई पीक करंट से पीक वैल्यू पे पहुंचने के लिए टाइम पूछा है, तो दिस कम्स अप टू बी साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 बेटर टू राइट, क्योंकि 1 है ना, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2, खत्म। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, अच्छा टी पूछा है, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ। देखिए जब भी कोई चीज हर्ट्ज में गिवन है ना, दैट मींस इट इज गिवन एफ इनटू टी एज पाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से मैं टी निकालूंगा, दैट इज पाई से पाई यहीं पे खत्म कर दो, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 4t, 1 डिवाइडेड बाई 4f, टी पूछा है, तो t विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4f गिवन है हमारे पास 60, so that comes up to be t will be equal to 1 divided by 4 to 20, 1 divided by 240 seconds, ये मेरे पास आंसर आएगा।
उसके बाद वी हैव इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल इंटरफेरेंस कहते ही हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इफ इट रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, बिल्कुल इट इंक्रीज इन अनदर रीजन कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि हम जानते हैं स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ही चलते हैं हमेशा, ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। देयर इज, और हम जानते हैं इंटरफेरेंस वर्क्स ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज देयर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी दीज फिनोमेना आर कंसिस्ट, ओ ये तो वही बात होगी यार, ये तो सही है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स shown by या exhibited by light waves, no, साउंड का भी इंटरफेरेंस होता है, ये तो हर वेव दिखाती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब A is true, B is false, सही है। उसके बाद we have a box of mass 115 kg is kept on the floor of a stationary trolley। अच्छा ये ट्रॉली है मेरे पास, ये 15 kg है, ठीक है। The coefficient of static friction between the box and trolley is, यहाँ पे coefficient of static friction is 0.112, ठीक है। कीपिंग द बॉक्स इन स्टेशनरी स्टेट ओवर द ट्रॉली, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अच्छा मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो ही आप जानते हो कि आप जानते हो एम ए शुड बी लेस और इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन, या मैं लिख सकता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन, एम से एम कैंसिल। जब मैं मैक्सिमम पूछूंगा तो लेस और इक्वल टू विल बी यहाँ पे इक्वल टू कर दूं, ठीक है, तो ए मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जी। ये तो स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है। म्यू कितना है 0.12, g कितना है 10, so that comes out to be 1.2। The sum of kinetic energy and potential energy of a simple pendulum bob is 0.02 joule। The speed of the simple pendulum at equilibrium position, equilibrium position आप जानते हो, equilibrium position पे kinetic energy potential energy जीरो हो जाएगी, kinetic energy is half mv square, और वो given है मेरे पास कितनी 0.021 by 2, बॉब का मास गिवन है 20 ग्राम, 20 इंटू 10⁻⁻2 3 kg में कन्वर्ट कर दो v स्क्वायर। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कीजिए, सो दैट कम्स अप टू बी 10 टाइम्स 4, ये आ जाएगा 2 v स्क्वायर रूट, हाँ ये आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड, सॉल्व कर दो डायरेक्टली। उसके बाद ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली, अभी आपने देखा v इज इक्वल टू 4/3 pi r cube, while as it is 4 divided by 3 pi r naught a to the power 1/3, so volume is directly proportional to a1 a not a cube। so ये ठीक है। difference of mass defect आप जानते हो, it is related to the nucleus, so the difference of the mass of nucleus and its constituents is called as mass defect। तो इसमें एक तो ये b सही है और d सही है, बाकी तो ये दोनों गलत है। उसके बाद द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, हम जानते हैं एंगुलर स्पीड इज इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। इनिशियली कितना था 600 आरपीएम में, है ना, 1200 डिवाइडेड बाय 2 इनटू कितने टाइम है 10 सेकेंड, ये मीटर में गिवन है तो 60 में कन्वर्ट कर दो, थीटा मिल जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ पाई, दैट इज 3 पाई एन, और आप जानते हो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको इजी, सॉरी थीटा आपका मिलेगा 1800 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 300 पाई, 300 पाई के आसपास मिलेगा, सो दैट इज 300 पाई विल बी इक्वल टू 2 पाई एन, पाई से पाई कैंसिल, एन विल बी इक्वल टू 150। I think this will be the correct answer. Number of revolutions. Now we do have one more question. Not any question. Okay. A submarine is designed to withstand a pressure of 100 atm. How deep it can go? देखिए बल्क मॉडुलस वाले कॉन्सेप्ट से हम ये वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स पढ़ते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट पी कितना गिवन है, इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे, वो कितना गिवन है 100। पी नॉट इज गिवन एज 1 atm, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एक atm गिवन है मेरे पास, प्लस रो जी एच, तो ये आ जाएगा हमारा 99 इज इक्वल टू रो जी एच। एच विल बी इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाय रो इज 10 रेज़ पावर 3, जी को इन्होंने 10 बोला है, सो एच इज इक्वल टू, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस वे एज द आंसर, ठीक है ना। हमारे पास रो गिवन है 10 रेज़ पावर 3 पानी का, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे पास यहाँ गिवन है, ये जो है ना ये हमारा 10 रेज़ पावर 5 आ जाएगा, so you are going to get 10 raised power 5 from this।
सो 990 मीटर है ना। यहाँ पे यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद वी हैव दिस क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली है, विजिबल लाइट यहाँ से होती है, गामा रेज आप जानते हो रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन से हो जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में फील्ड इनसाइड जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, सो ये तो गलत हो गया। इंटीरियर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, ये तो पता ही है हम। उसके बाद ये कह रहा है कि एट द सरफेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, the electrostatic potential is zero everywhere, no it is constant everywhere, that is why you write E is equal to dV divided by dr। जब V कांस्टेंट है, जब V कांस्टेंट है तभी E जीरो है, इनसाइड बोला है ना, तभी तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस करेक्ट, दिस करेक्ट, दिस करेक्ट, फाइन। उसके बाद वी हैव दिस, ये तो बेसिक है हमारे पास, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नॉट। तो अब हमसे यहाँ पे किस में गिवन है, ये नैनोमीटर में, विच विल नॉट 1240 डिवाइडेड बाय, ये कितना गिवन है 6.6। तो अगर मैं इसको रफली ले लूँ तो ये 180 से ऊपर जाएगा 200 के आसपास, यानी 200 से नीचे जो भी होंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, 200 से ऊपर जो होंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक नहीं करेंगे, या 200 भी नहीं कर पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फाइन। इसी तरीके से ये है हमारे पास इन द फर्स्ट excited state of hydrogen atom, the energy of the electron is this, the radial distance हम जानते हैं, that is r naught into r naught square into n, right। और n हम जानते हैं कौन सा एक्साइटेड स्टेट पूछा गया है, द रेडियल इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n की वैल्यू 2 r naught, सॉरी दिस 2 स्क्वायर, r naught is 0.53 एंगस्ट्रॉम, simple। So we will just put the value and we will get the answer. Now we do have these last two questions. Very first question, when the forward bias voltage across a PN junction diode increases above threshold volt, उसको ही हम बोलते हैं कि saturation current आ चुका है, peak value current बढ़ जाता है जब आप उस threshold value से increase कर देते हो current को, right। हम जानते हैं ना IV characteristics जब हम पढ़ते हैं, we draw the graph like this in forward bias and reverse bias में ऐसे बनाते हैं। This current is called reverse, no, जब नी वोल्ट इस जब ये forward bias है तो reverse saturation current कैसे बोलेंगे, A is correct, B is wrong। और लास्ट वाला इज a flask contains argon and chlorine in ratio of this, the temperature of the mixture, the ratio of the root mean square value, root mean square value तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो VRMS is equal to अंडर रूट ऑफ, किस किस का पूछा है, आर्गन और क्लोरीन का, सो यू आर गोइंग टू गेट 49, sorry, so you are going to get 7 divided by root 4, so you are going to get 7 divided by 2, इसका कोई रोल नहीं था, सो वी आर गोइंग टू गेट दिस क्वेश्चन। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो नीट 2026 का जो पेपर था ओवरऑल इट वाज, फिजिक्स की बात करेंगे, वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट इन द गिवन टाइम फ्रेम, थोड़ा कैलकुलेटिव था। इन केस देयर इज एनी डाउट और एनी calculation error, you can just let us know in the comment section. Thank you.